یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ کتنے زبردست پائے بن کے تیار ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں التازی فوڈ اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی صوفی۔ آج آپ کا صوفی بھائی لایا ہے بھڑے پاؤ کی ریسپی۔ ہم بھڑے پائے پکائیں گے، لیکن یہ جو بھڑے پائے ہوتے ہیں یہ گوشت کی طرح نہیں پکتے۔ برائے مہربانی بھڑے پائے کو گوشت کی طرح بنا کے اسے برباد نہ کریں، اسے تباہ نہ کریں، کیونکہ اگر مجھ کو یہ پتہ چل گیا، کٹے کو یہ پتہ چل گیا کہ میرے جانے کے بعد دنیا میں آپ نے جو پائے ہیں وہ گوشت کی طرح پکائے ہیں، تو یقین کریں آپ کے خواب میں آ کے یہ آپ کو ڈرائے گی۔ پائے ہم بنائیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پائے جو ہیں نا یہ چپ چپے کس طرح سے بنتے ہیں، یعنی جب ہم پائے کو کھائیں تو ہماری انگلیاں آپس میں جڑے، اس میں ہم نے کچھ ایکسٹرا نہیں ڈالنا۔ پائے کو ہم اس طریقے سے بنائیں گے کہ اس کا شوربہ بڑے مزیدار ہوگا، اور جب ہم اس کو کھائیں گے تو ہماری انگلیاں اس طرح سے ساتھ چپکیں گی۔ تو اس میں مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، آئیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پائے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ میں 2 پائے کی ریسپی بتا رہا ہوں۔ یہ جو بڑے جانور کے پائے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بہت بڑا جانور جو پائے کا سائز بڑا ہوتا ہے۔ ہم نے بہت بڑا پایا نہیں لینا، نہ بہت چھوٹے پائے لینے ہیں، ہم نے درمیانے سائز کے پائے لینے ہیں۔ گلنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور ٹیسٹفل بنتے ہیں۔ اور جو پائے آپ نے لینے ہیں اس کو گوشت کی طرح نہیں کٹوانا، اس کو اس طرح سے لمبا لمبا آپ نے کٹوانا ہے۔ پایا اس طرح سے ہی بنے تو اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے اور ٹیسٹ میں بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں نے 2 پائے لیے ہیں، ایک لہسن لیا ہے اور لہسن کو میں نے چھیل لیا ہے، 2 ٹکڑے میں نے ادرک کے لیے ہیں، 1 ٹیبل سپون سونف ہے، 1 ٹیبل سپون ثابت دھنیا ہے، 2 میں نے پیاز لیے ہیں اور ان کو میں نے رفلی کاٹا ہے، دال چینی لی ہے، 5 لونگ لیے ہیں، 2 تیز پتے ہیں، 3 بڑی الائچیاں ہیں اور 1 ٹیبل سپون میرے پاس نمک ہے۔ تو یہ مزیدار پاوے بنیں گے کیسے، آپ نے ویڈیو میں اینڈ تک رہنا ہے اپنے صوفی بھائی کے ساتھ۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ کا بھائی لاتا ہے آپ کے لیے روزانہ بڑی ہی مزیدار قسم کی ریسپی۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ایک گٹھلی سی بنا لینی ہے۔ گٹھلی میں ہم نے کیا چیزیں ڈالنی ہیں، یہاں پہ میں نے 1 ٹیبل سپون سونف لی ہے اور 1 ٹیبل سپون ثابت دھنیا لیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہم ایک کپڑے میں ڈال کے ہم نے اس کی گٹھلی بنا لینی ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بھی کسی کپڑے میں اس کی گٹھلی بنا لینی ہے۔ اب یہاں پہ میں نے پریشر کوکر لے لیا ہے اور پریشر کوکر میں میں نے 3 جگ پانی شامل کر دیا، اور دیکھیں اس وقت پانی جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے۔ تو اب میں کیا کروں گا کہ اس میں تیز پتہ ڈال دوں گا، 3 بڑی الائچیاں ڈال دوں گا، دال چینی ڈال دوں گا، اور یہاں پہ میرے پاس جو 5 لونگ ہیں یہ بھی ڈال دوں گا۔ ایک جو لہسن کو چھیل کے رکھا تھا یہ بھی شامل کریں گے، اور جو ادرک کے 2 پیس ہیں یہ بھی شامل کریں گے۔ 1 ٹیبل سپون اس میں نمک شامل کر دیں گے، اور جو 2 میں نے پیاز رفلی کاٹ کے رکھے تھے یہ بھی اس میں شامل کریں گے، اور یہ جو میں نے گٹھلی بنائی تھی یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے۔ اور یہاں پہ میرے پاس جو 2 پائے ہیں یہ پائے بھی میں اس میں شامل کر دوں گا۔ میرے پاس جو پریشر کوکر ہے یہ بڑے سائز کا ہے، تو اس میں آسانی سے 2 پائے پک جاتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر پریشر کوکر چھوٹے سائز کا ہے تو آپ ایک ایک کر کے بھی پکا سکتے ہیں۔ اب ہم نے اس کو 10 سے 15 منٹ اسی طرح سے پکانا ہے۔ 10-15 منٹ پکانے کے بعد پھر ہم نے اس پہ پریشر کوکر لگا دینا ہے۔ پریشر کوکر میں نے اس لیے اس وقت نہیں لگایا تھا کہ یہ دیکھیں اب جب پانی ابلا ہے تو یہ ابل کے اوپر آ رہا ہے، اگر ہم پریشر کوکر لگا دیتے تو یہ نقصان بھی ہو سکتا تھا، اس وجہ سے ہم نے پریشر کوکر پہلے نہیں لگایا۔ یہ دیکھیں اس میں یہ جو جھاگ آ رہا ہے نا، ہم نے اس کا یہ جھاگ اتار دینا ہے، اس طرح سے تھوڑا سا اوپر لے کے اس کے جھاگ کو ہم اس طرح سے پانی میں سے الگ کر لیں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس جھاگ کو پانی سے الگ کر لیا ہے۔ جھاگ میں نے اس میں سے الگ کر لیا ہے۔ اب میں نے پریشر کوکر لگانا ہے۔ پریشر کوکر لگانے سے پہلے ایک چیز احتیاطاً چیک کر لیا کریں کہ پریشر کوکر کے یہ جو سوراخ ہیں یہ کھلے ہوئے ہوں۔ یہ آپ کو اس طرح سے پتہ چل جائے گا کہ جب آپ اس کو روشنی میں اس طرح سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، یا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں اس طرح سے ہوا مارنی ہے، منہ سے پھونک مارنی ہے، اور ادھر انگلی رکھنی ہے۔ آپ کی جگہ جو پھونک ہے وہ آر پار ہو رہی ہے تو سمجھیں اس کے سوراخ کھلے میں ہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
और दूसरा इसका रबट एक लेवल पे हो। तो प्रेशर कुकर लगा देते हैं। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। प्रेशर कुकर हमने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं और बहुत हल्की आंच पे भी नहीं, मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे। तेज़ आंच पे इसलिए नहीं पकाएंगे फिर क्योंकि जो पानी है वो खुशक हो जाएगा और पाए हमारे नहीं गलेंगे, इसलिए इसको हमने नॉर्मल आंच पे पकाना है। पाए गलते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद हमने क्या करना है। पाए मैंने जो गलाने के लिए रखे थे पाए गल चुके हैं। मैंने प्रेशर कुकर 1.5 घंटा लगाया है। 1.5 घंटे में पाए जो हैं वो ठीक तरीके से गल जाते हैं। पाए जो हैं वो 1.5 घंटे में गले हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो पाए मैं बना रहा हूँ वो बहुत बड़े जानवर के नहीं है। बाज़ औक़ात पाया जो होता है वो बड़ा तगड़े जानवर का, जैसे हम पाया देख के कहते हैं कि यार ये तो पाया जो है ना वो हाथी का पाया लग रहा है। तो वो जो पाए होते हैं बड़े जानवर के, बड़े साइज के, वो तकरीबन 2 से ढाई घंटे में गलते हैं। ये पाए 1.5 घंटे में गले हैं। लेकिन जो मुख्तलिफ पाए होते हैं वो मुख्तलिफ टाइम में गलते हैं। कई पाए 1 घंटे में भी गल जाते हैं। तो तरीकाकार ये है कि जब आप पाए को गलाने के लिए रखें तो 40, 45 या 50 मिनट बाद प्रेशर कुकर खोल के उसको चेक कर लेंगे पाया हमारा कितना गला है और मज़ीद ये गलने में कितना टाइम लेगा। तो इस तरह ये होता है कि अगर हम इसको वैसे ही 1.5 घंटा गलाएं और बाद औक़ात होता है कि पाया 1.5 घंटे में से पहले यानी 1 ही घंटे में गल जाता है, तो 1.5 घंटा लगाएंगे तो पाया हमारा वो खुर जाएगा, वो बोटियां हमारी बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगी, तो फिर वो पाए का टेस्ट नहीं रहेगा। पाए तो हमारे गल चुके हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 टेबल स्पून मेरे पास लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए होती है, ज़रा सालन में अगर डले तो वो ज़रा उसकी लुक अच्छी लगती है। हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं, छोटे साइज़ के टमाटर थे और टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का टमाटर है तो वो आप एक ही करें और उसको ग्राइंड कर लें। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने जो गठली बनाई थी इसको इस यखनी में से अलग कर लेंगे और यखनी में से हमने बोटियां और हड्डियां दोनों चीज़ें अलग कर लेनी हैं। अब मैंने पतीली ले ली है। यहाँ पे मेरे पास 3 चम्मच घी है। ये घी मैं इस पतीली में डाल दूंगा। अब इस घी में मैं 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को घी में मैं 1 मिनट तक फ्राई करूंगा। लहसुन अदरक के पेस्ट को घी में 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है क्योंकि जो नमक था वो मैंने टेस्ट किया कम था। ये मसाले इसमें शामिल कर देंगे। मसाले शामिल करने के बाद हल्का सा चम्मच फेरने के बाद साथ ही इसमें मैं टमाटरों का पेस्ट शामिल कर दूंगा। यहाँ पे 2 टमाटरों का पेस्ट है मेरे पास। अब मसाले की हमने हल्की सी भुनाई करनी है, ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 30 सेकंड तक भुनाई करेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगा। बस ज़रा सा, बिल्कुल ज़रा सा पानी शामिल किया है मैंने। मसाले की मैंने 30 सेकंड तक भुनाई कर ली है। अब मैंने जो पाए गला के रखे थे ये पाए इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये पाए हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। अब पावे डालने के बाद हल्का सा चम्मच फेरने के बाद अब 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूंगा। इस तरह से फैला के शामिल करेंगे। गरम मसाला शामिल करने के बाद अब हमने इसकी 2 मिनट भुनाई कर लेनी है। पाए की मैंने 2 मिनट भुनाई कर ली है अच्छे तरीके से। अब इसमें मैं यखनी शामिल करूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे जो यखनी है मैं ये शामिल कर दूंगा। यखनी डालने के बाद अब हमने इसको 2-3 बॉयल देने हैं और उसके बाद हमारे पाए तैयार हैं। एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो पाए हैं इसमें आपने बहुत ज़्यादा लंबा शोरबा नहीं करना, क्योंकि अगर लंबा शोरबा होगा तो हमारे जो पाए हैं उनका वो टेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि हम बेचने के लिए तो बना नहीं रहे। क्योंकि बाज़ार में आप देखें तो लंबा ही शोरबा होता है, तैर के जाके हमें ढूंढ के कहीं से बोटी ढूंढनी पड़ती है। तो इसमें हमने शोरबा बहुत गाढ़ा नहीं लेकिन लंबा शोरबा भी नहीं रखना। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम शोरबा किस तरह से रखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको ढक्कन दे देता हूँ और कह लें कि इसको हम 1 मिनट तक पकाएंगे। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारी यखनी कम पड़ जाती है। जब हम प्रेशर कुकर में पाए गलाते हैं तो पानी कम हो जाता है, थोड़ा रह जाता है, जब हम डालें तो वो थोड़ा होता है। फिर हमने इसमें और पानी शामिल करना है, लेकिन पानी हमने ठंडा शामिल नहीं करना। पानी को हम अलग से किसी पतीली में उबालेंगे और फिर वो पानी उबला हुआ हम शामिल करेंगे। ठंडा पानी हमने हरगिज़ इसमें शामिल नहीं करना। 1 मिनट मैंने इसको ढक्कन दे के पकाया है। 1 मिनट बाद हम इसका ढक्कन उठा लेंगे और अब हमने इसमें
हल्का हल्का चम्मच फेरना है और इसको हमने 2 मिनट तक मज़ीद पका लेना है। बड़ी आसानी से ये पाए बन के तैयार हो जाते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम पाए को रखें और सारी रात वो पकते रहें और फिर सुबह जाके हम उसको खाएं। तो प्रेशर कुकर में इस तरह से बनाएं, बड़ी जल्दी से चटपट से पाए बन के तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इस तरह से पाए बनाएंगे तो बड़े मज़ेदार और बड़े टेस्टफुल बनेंगे, क्योंकि पाए बनाने का असली तरीका यही है। फिर कह रहा हूँ कि पाए को आपने गोश्त की तरह नहीं पकाना, क्योंकि फिर भैंसा ख्वाब में आएगा और आपको डराएगा। 2 मिनट मैंने इसको मज़ीद पका लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगा और चूल्हा मैं कर दूँगा बंद। 2 मिनट ढक्कन इसके ऊपर पड़ा रहेगा। इससे ये होगा कि जो तरी है वो सालन के ऊपर आ जाएगी। उसके बाद हम सर्विंग के लिए पेश करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त पाए बन के तैयार हुए हैं। ये देखें जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त पाए बने हैं। ये चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह। बोटियां भी हमारी बहुत अच्छे तरीके से गली हैं। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त पाए बन के तैयार हुए हैं। इस तरह से पाए बना के तैयार करें, एक तो जल्दी से बन के तैयार हो जाते हैं और पाए बनाने का असली तरीका यही है। दूसरे तरीके से जो पाए बनते हैं वो बन तो जाते हैं मगर टेस्टफुल नहीं होते। इस तरीके से प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो 2 घंटे के अंदर अंदर हमारे पाए बन के तैयार हो जाते हैं। हमें सारी रात लगाने की ज़रूरत नहीं होती और बनते बड़े टेस्टफुल हैं। और जब आप इसको खाएंगे तो आपकी उंगलियां भी आपस में चिपकेंगी। पाए का असली मज़ा, असली टेस्ट तभी निकलता है कि जब हम इसको खाएं तो हमारी उंगलियां चिप चिप हों, आपस में जुड़ें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफी भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।